گمی بٲیِس پنُن پروگرام بوزان. امہِ پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ وسیٖم فاروق. یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن. سانہِ دوٚیمہِ اعلانُک کٔرِو ہنا انتظار. آکاشوانی سری نگر. اپنی گھڑیاں ملائیے. شہربین ٹائم شام کے 7 بجے ہے. پروگرام شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے. شہربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات ہیں: جموں کشمیر کے بیشتر اضلاع میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری. شوپیان، کلگام، کرنا اور گریز میں 1 سے 3 فٹ تک تازہ برفباری درج. سری نگر جموں قومی شاہراہ، مغل روڈ، گریز اور کرگل شاہراہ ٹریفک کے لیے بند. کئی علاقوں میں بجلی اور پانی کی سپلائی اثر انداز. قومی شاہراہ پر دلدوز سڑک حادثہ، 4 افراد کی موت. آج رات سے موسم میں بہتری رونما ہوگی. 1 فروری سے بعض علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان. محکمہ موسمیات. بانی الخطے کے مضافاتی علاقے گزشتہ برفباری کے بعد سے باقی علاقوں سے منقطع. بجلی بھی متاثر. اور بھی موضوعات ہیں آج کے شہربین میں ایک وقفے کے بعد. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. بھائی صاحب، کل میری اینیورسری ہے تو وائف کے لیے کچھ بڑھیا سا دکھائیے. یہ دیکھیے سر، گولڈ رنگ ایک دم ایکسکلوسیو ہے. ایسا ڈیزائن آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ ہماری گارنٹی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، پر اس کی پیورٹی کی گارنٹی کیا ہے؟ سر، اس کے لیے آپ BIS کیئر ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور سونا خریدنے سے پہلے ایپ پر HUID کوڈ ضرور ویریفائی کریں. آج ہی BIS کیئر ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور ایک جاگروک گراہک بنیے. پیورٹی کی ایک ہی پہچان، ہال مارک کا نشان. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز، جموں اینڈ کشمیر برانچ آفس. مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگ. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. گھر گھر کی آواز شہربین اب آکاشوانی سری نگر سے میڈیم میں 268.81 میٹر، FM2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں. سامعین، وادی کشمیر میں آج رواں سیزن کی دوسری برفباری ہوئی، جس کا اثر کم و بیش پوری وادی میں دیکھا گیا. وادی کے پہاڑی علاقوں میں درمیانہ درجے کی برفباری دیکھی گئی، جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی برفباری اور بعض علاقوں میں بارش کی خبریں ہیں. جموں خطے کے راجوری، پنچ اور خطہ چناب میں بھی درمیانہ درجے کی برفباری کی خبریں ہیں، جبکہ جموں خطے کے دیگر علاقوں میں بارش کی اطلاعات ہیں. کشتواڑ سے مشتاق دیو نے خبر دی ہے کہ ضلع میں سب سے زیادہ برفباری چیچا میں ہوئی، جہاں 2 فٹ تازہ برف کی خبریں ہیں، جبکہ دیگر علاقوں میں 3 سے 8 انچ تک کی برفباری کی خبریں ہیں. شوپیان ضلع ہیڈ کوارٹر پر 1 فٹ سے زائد، جبکہ ہیرپورہ میں 2 فٹ سے زائد برفباری ہوئی ہے. پیر کی گلی علاقے میں بھی بھاری برفباری کی خبریں ہیں. ضلع میں تازہ برفباری کے بعد سے کئی علاقوں کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے. مکمل رپورٹ سنتے ہیں فیاض وانی سے. جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں حالیہ برسوں کی سب سے شدید اور غیر معمولی برفباری نے ایک بار پھر قدرت کے سامنے انسانی تیاروں کو بے بس ثابت کر دیا اور بعد چند گھنٹوں کے دوران 4 فٹ سے زائد برف پڑنے کے باعث نہ صرف معمولات زندگی یکسر مفلوج ہو کر رہ گئی بلکہ انتظامیہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا. حالیہ برفباری کے بعد آج دوبارہ ہونے والی تازہ برفباری نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا، جس کے باعث پورا ضلع شدید سردی اور مشکلات کی لپیٹ میں آ گیا ہے. ضلع ہیڈ کوارٹر پر تازہ 1 فٹ کے قریب برف ریکارڈ کی گئی،
जबकि पहाड़ी इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ने की इत्तला शहरीन को मौसूल हुई है। अगरचे जिला हेडक्वार्टर समेत दीगर कई इलाकों में पहले दिन बिजली का निजाम बहाल किया गया, ताम ताजा बर्फबारी से मुतअद्दिद देहात में बिजली का निजाम मुतासर हुआ। जिला के बेशतर देहात पीने के पानी की अदम दस्तियाबी से जबरदस्त मुश्किलात से दो चार हुए हैं, क्योंकि पानी के बेशतर जराये पहाड़ी इलाकों में वाक़ा है और शदीद बर्फबारी की वजह से पानी का सप्लाई निजाम दरम बरम होकर रह गया। मुतअद्दिद देहात जिनमें गागलन, मेमुंदर, आइंद, रावतपुरा, दचीपोरा, व्हील, कसजोरा, शराबपोरा और दीगर देहात शामिल है में पानी का सप्लाई निजाम मुतासर हुआ है। और आज और गुज़श्ता अगरचे मज़कूरा इलाकों के लोगों ने आज खुद पानी की बहाली के लिए कोशिशें की थी, ताहम मुंजमद ज़राए के बायस ये कोशिशें बारावर साबित न हो सकी। उधर ताजा बर्फबारी के बाद जिले के कई देहात का राब्ता जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो गया। वही दूसरी जानिब जिला हेडक्वार्टर पर बर्फ हटाने का अमल तेज करने के लिए बिहारों की जानिब से स्नो कटर मशीनों का इस्तेमाल अमल में लाया गया, ताकि सड़कों को कुशादा करके ट्रैफिक की नकलो हरकत को बहाल किया जा सके। इस दौरान जिले में डिप्टी कमिश्नर शशीर गुप्ता बर्फ हटाने, तिब्बी सहूलियात और दीगर बुनियादी खिदमात की फराहमी के अमल की आज खुद निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो आवाम को हर मुमकिन सहूलियात बाम पहुंचाने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बराबर कर रहा है। तमाम मुकामी सतह पर मैकेनिकल डिवीजन की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अवामी हल्कों ने शहरीन को बताया कि बर्फबारी के पहले दिन लाई गई बेशतर मशीनें नाकारा हुई, इसके बायस मुतअद्दिद सड़कों से बर वक्त बर्फ न हटाई गई। मुकामी लोगों ने बताया कि शोपियान एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर मैकेनिकल डिवीजन का कयाम लाजमी था, मगर मज़कूरा डिवीजन को ऊटीपोरा में रखा गया है। अवामी हल्कों ने नाराजगी का इजहार करते हुए शहरीन को बताया कि पूरी वादी में सबसे ज्यादा बर्फबारी शोपियान इलाके में हुई, मगर उसके बावजूद किसी भी वजीर ने जिला इंतजामिया की हौसला अफजाई और सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए शोपियान जिले का दौरा नहीं किया। जबकि अवामी हल्कों ने नंबर पार्लियामेंट आगा रूला और मियां अल्ताफ को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ताहम जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में मामूलात जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश में मसरूफ अमल है। ये रिपोर्ट फाइल करने तक जिले के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में वक्त से बर्फबारी का सिलसिला जारी था। आपने फयाजवानी की रिपोर्ट सुनी। समीन एशमुकाम लातरू इलाके के मुतअद्दिद देहात 23 जनवरी की बर्फबारी के बाद से पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं और इस वजह से लोग परेशान हैं। मुतासर इलाकों में एशमुकाम, अनु, लातरू, लकड़ीपोरा, राजवारा, जुमू, तलहाड़, बिड्डीगाम, गणेशपोरा और दीगर मोहल्ला जात शामिल हैं, जहां पीने के पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होने की खबरें हैं। बर्फबारी के कई दिन गुजरने के बावजूद भी लोगों को सप्लाई बहाल नहीं हो सकी है। इधर कुलगाम के बालाई इलाकों में भी भारी बर्फबारी की खबरें हैं। हमारी नुमाइंदे के मुताबिक जिले के दूर दराज इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई असरअंदाज हो चुकी है। मुकम्मल रिपोर्ट फारूक राथी से। जिला कुलगाम में गुज़श्ता कई रोज से जारी शदीद बर्फबारी ने पूरे जिले को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके बायस न सिर्फ मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है, बल्कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस शदीद मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा तरीन इतलात के मुताबिक जिले के मुख्तलिफ मैदानी और नीम पहाड़ी इलाकों बशमूल दमाल, हाजीपोरा, बानीमुला, कुलगाम, दिवसर, होम शालीबुग, काजीगुड़ और इलाका कोण में 1.5 फुट से लेकर 2.25 फुट तक बर्फ जमा हुई है, जबकि जारी बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफे भी हुआ है। दूसरी जानिब जिले के बालाई और दूर उफ्तादा इलाकों में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बनी हुई है, जहां नंदी मर्ग, डीके मर्ग, हुम पथरी, दांदवाड़, गुलजाराबाद, दमस्थल, अरबल, याड़ी खा और दीगर मुल्का इलाकों में धुंध हवाओं के साथ साथ शदीद बर्फबारी हो रही है। इन इलाकों में 2.5 फुट से जायद बर्फ जमा होने की इतलात फराहम हुए हैं। यह रिपोर्ट फाइल करने तक जिले में मजमूई तौर 1.5 फुट से लेकर 2.25 फुट तक बर्फ जमा हुई है। मुसलसल और शदीद बर्फबारी के नतीजे में जिले के बेशतर इलाकों में बिजली का निजाम मफरूज होकर रह गया। ये थे कुलगाम से फारूक राथर। इधर महकमा तामीरत आमा ने बर्फ हटाने में गैर जरूरी ताखीर और अफसरान की गैर हाजिरी पर सख्त कार्रवाई करते हुए 5 इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया है। ये फैसला 25 जनवरी को नायब वजीर आला के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंट्रल श्रीनगर के दौरे के बाद सामने आया, जहां मैकेनिकल डिवीजन श्रीनगर के कई इंजीनियरों को गैर हाजिर पाया गया। बानीपुरा से अंजुम ने खबर दी है कि जिले में आज दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। मैदानी इलाकों में 4 इंच जबकि बलाई इलाकों में 1 से 1.5 फुट तक बर्फबारी की खबरें हैं। इधर मालूम हुआ है कि गुरेज में 2 से 3 फुट ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। गांधरबल जिले के बलाई इलाकों में भी 3 फुट के आसपास बर्फबारी की खबरें हैं, जबकि बर्फबारी का सिलसिला दिन भर जारी रहा। मुकम्मल रिपोर्ट रहीम रिजवान से।
वादी के दीगर अजला की तरह गांधरबल जिले में भी गुज़श्ता शाम से लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। जिले के बालाई इलाकों बशमूल गूंड, कुलन, रैजन, गगनगीर, रईल, रामवारी, हारी गंजवन, सरफराज, केरवन, फ्राव, गुजरपति, कचपत्री, अकाल, नजवन, नारानाग, वांगत, खौनन, कशनबल, छतरगुल, बाला, बाबा ऋषि, अंदरवन, जबन और चूंठ वलीवार में 2 फुट से ज्यादा ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि बालाई इलाकों में देर कबल हुई 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी भी मौजूद थी। इस तरह इन इलाकों में भारी बर्फबारी होने के बाइस रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह गई और लोग घरों में ही मशहूर होकर रह गए। इस दौरान दर्जनों इलाकों में पीने के पानी की किल्लत और बिजली की अदम दस्तयाबी के बाइस लोगों को गोना गो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जिला के मैदानी इलाकों में भी गुज़श्ता शाम से बर्फबारी जारी है, जहां कई 1 फुट और कई मकामात पर इससे ज्यादा बर्फबारी होने की इतला है। इस दौरान महकमा R&B ने आज सुबह सवेरे ही जिला के तमाम छोटी बड़ी सड़कों पर से बर्फ हटाने के लिए मशीनें काम में लगा दी और इन सड़कों को काबिल आमदुरफ्त बनाया गया। अलबत्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन गांधरबल आरिफ मोहम्मद इकबाल और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B सब डिवीजन कंगन आशिक हुसैन ने शहरबीन को बताया कि गांधरबल और कंगन के तमाम सड़कों पर से 70 से 80% तक बर्फ हटाया गया, ताहम ताजा बर्फबारी होने के बाइस उन्हें बर्फ हटाने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं और सड़कों पर फिसलन पैदा होती है, जिससे गाड़ियों को अबूर मरूर में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इधर शोरा आपाक सोनमर्ग में 3 फुट, बालतल में 3.5 फुट और जोजिला दर्रे के आर पार 4 फुट ताजा बर्फबारी होने की इतला है, जबकि इससे कबल यहाँ 1.5 फुट के करीब बर्फबारी हुई। वाक़या रहे 23 जनवरी को जोजिला, मिनीमारक, बालतल, कैप्टन मोड़ और दीगर मकामात पर हुई भारी बर्फबारी के पेश नजर सोनमर्ग करगिल शहरा को एहतियातन ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद करना पड़ा और शहरा पर आज 5वें रोज भी ट्रैफिक की नकलो हमल मुअत्तल रही। इस दौरान किसी भी माल बरदार गाड़ी को सोनमर्ग की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस बीच DYSP ट्रैफिक गुलजार अहमद के मुताबिक सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को कुलन से आगे जाने की इजाजत दी जाती है जिन्होंने एंटी स्टिक चैन गाड़ियों के चारों टायर पर चढ़ाए होंगे। इस सिलसिले में सन्नत से आगे कई मकामात पर नाके लगाए गए, जहां से बिना एंटी स्टिक चैन चढ़ाए गाड़ियों को रोक दिया जाता है। ये थे गांधरबल से रहीम रिजवान। समीन शुमाली कश्मीर के बाज़ इलाकों में दरमियाने से भारी सतह की बर्फबारी की खबरें। गुलमर्ग में 20 इंच जबकि दीगर इलाकों में 18 इंच से जायद बर्फबारी हुई है। टंगमर्ग से मौसूल इत्तलात के मुताबिक यहां ताजा 1 फुट बर्फ दर्ज हुई है। गुलमर्ग सड़क पर आज सुबह से ही बर्फ हटाने का काम सूरत से जारी रहा। इधर करना, टंगडार समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में 1.5 से 2.5 फुट तक की ताजा बर्फबारी की खबरें हैं, जबकि कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी मुतासिर है। तफसीलात इशफाक सईद से। अभी पिछली बर्फबारी से लोग पूरी तरह से संभले नहीं थे, ताहम एक मरतबा फिर ताजा बर्फबारी ने निजाम जिंदगी को मुतासर करके रख दिया है और आज दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहने वाली बर्फबारी ने निजाम जिंदगी को एक मरतबा फिर मुतासर कर दिया है। बर्फबारी के नतीजे में करनाल, कुपवाड़ा और केरन कुपवाड़ा शाहराहें गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए मुसलसल बंद है, जबकि जिला के मुताबिक इलाकों में बिजली सप्लाई एक मरतबा फिर मुनक़ता हो चुकी है। करनाल की साधना टाप पर ताजा 2.5 फुट बर्फ जमा होने की इत्तलात है, जबकि इस दर्रे पर नई और पुरानी कुल मिलाकर मजमूई तौर पर तकरीबन 10 फुट बर्फ जमा हो चुकी है। अगरचे 26 जनवरी की शाम को महकमा बीकन ने करनाल कुपवाड़ा शाहरा को आर्जी तौर पर बहाल किया था, तब मुसलसल बर्फबारी के बाद शाहरा दोबारा बंद हो गई। साधना टाप के आर पार शमस बदी पहाड़ी सिलसिला, बंगसवादी, टायर, रागनी और दिगर बुलंद पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं करनाल की नैकिया से लेकर टीटवाल तक दिन भर वक्फे वक्फे से बर्फ पड़ती रही, जिसके नतीजे में इन इलाकों में 1 से 2 फुट तक ताजा बर्फ जमा हो चुकी है। केरन में भी सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है। फरकिया टाप पर ताजा 2.5 फुट बर्फ जमा होने के बाद बर्फ हटाने का अमल ठप हो गया है, जबकि मचल और मुनिका इलाकों में जेड गली समेत अंदरूनी सड़कों को बंद कर दिया गया है। इन इलाकों में बिजली सप्लाई भी बुरी तरह से मुतासर हुई है। इधर जिला के मैदानी इलाकों में 1 से 2 फुट तक बर्फ जमा होने की इत्तलात मौसूल हुई है, ताहम इंतजामिया की जानब से जरूरी खिदमात की बहाली के इकदाम तेज कर दिए गए हैं। सेहत मराकज, पानी सप्लाई स्कीमों और दीगर अहम महकमाजात तक रसाई को तरजीह बुनियादों पर यकीनी बनाया जा रहा है, लेकिन मुसलसल बर्फ में दिक्कत पेश आ रही है। ताहम इसके बावजूद भी मेन रास्ता सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। दरी असना
ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ شریکانت بالا جو پورے ضلع کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، نے تمام محکمہ جات کو واضح ہدایت جاری کی ہے کہ عوام کو کسی بھی صورت میں مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے سرحدی علاقوں کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ برف باری کے دوران غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور بلند پہاڑی چوٹیوں کا رخ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ان علاقوں میں پسیاں اور پتھر گرنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اس دوران پولیس اور دیگر امدادی اداروں کی جانب سے ضلع کے مختلف علاقوں میں ریسکیو کارروائیاں بھی انجام دی گئی ہیں، جس دوران برف میں پھنسے خواتین، بزرگوں اور دیگر افراد کو بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل بھی شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے اشفاق سعید کی رپورٹ سنی۔ ظفر اقبال نے اڑی سے خبر دی ہے کہ تحصیل بونیار کے دیہات لمبر اور ددرے میں گزشتہ 5 روز سے بجلی سپلائی معطل ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے ہماری نمائندوں کو بتایا کہ گزشتہ برفباری کے بعد سے بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے اور JKPDCL اب تک عملی اقدامات کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ بونیار تحصیل میں ابھی بھی صرف 50% دیہات میں ہی بجلی بحال ہو چکی ہے، جبکہ محکمہ اعلی حکام کو مکمل بحالی کے غلط اعداد و شمار فراہم کر رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ بجلی کی عدم دستیابی کے ساتھ ساتھ وہاں سڑکیں بھی بند ہیں اور اس سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ ڈوڈا سے نصیر کھوڑا نے اطلاع دی ہے کہ وہاں بالائی علاقوں میں بھاری برفباری ہو رہی ہے اور میدانی علاقوں میں ہلکی برفباری درج ہوئی ہے۔ شہربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔ کیا آپ جانتے ہیں HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए सुकॉस्ट का तैयार करदा पेटेंटेड फॉर्मूला मैजिक फूड टेक्सो अमेज़न पर दस्तयाब, या ऑर्डर करने के लिए डायल करें 7051311389। शहरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समी श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर जकानी पुल के नजदीक आज एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बस और टाटा मोबाइल गाड़ी के दरमियान टक्कर हुई। इधर रामबन जिले के बाद इलाकों में गुज़श्ता बर्फबारी के बाद से सड़कें हनूज बंद हैं। गरियासना आज कौमी शहर पर ट्रैफिक भी बंद रहा। मुकम्मल रिपोर्ट मोहम्मद तस्कीन से। गुज़श्ता 5 में से 2 रोज तक बहाल रहने के बाद ताजा बर्फबारी और फिसलन के बाइस कल रात देर गए से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए एक बार फिर बंद कर दिया गया है और माल और मुसाफिर गाड़ियों को शाहराह के महफूज मुकामात पर रोक दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने बताया कि बानहाल और काजीगुंड के सेक्टर में ताजा बर्फबारी के बाद शाहराह पर पैदा हुई फिसलन की वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की मुअत्तली का फैसला कल आधी रात को लिया गया था और काजीगुंड और उधमपुर से ट्रैफिक को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि बानहाल टनल और रामसू के सेक्टर में 6 से 12 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जबकि जवाहर टनल के जरिए साबका जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 1 फुट से ज्यादा बर्फ जमा हो चुकी है और इस शाहराह के रख रखाव के लिए जिम्मेदार बीकन की तरफ से बर्फ साफ करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। ताहम मुसलसल बर्फबारी की वजह से बानहाल दोगाम और जवाहर टनल को जोड़ने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुतासिर रहा। मौसम की खराबी और शाहराह और परवाजों की मुअत्तली के बाइस श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन और श्रीनगर के दरमियान मुसाफिरों के बाहरी रश से निमटने के लिए शुमाली रेलवे के जम्मू रेलवे डिवीजन की तरफ से आज और कल के लिए 2 खुसूसी रेल गाड़ियों को चलाने का फैसला किया गया है और आज सैकड़ों मुसाफिरों को लेकर ये खुसूसी रेल सर्विस कटरा और श्रीनगर के दरमियान चलाई गई। दरियासना आज सुबह उधमपुर के नजदीक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर शारदा माता मंदिर के पास पेश आए सड़क के एक दिलखराश हादसे में 4 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 1 खातून जख्मी हो गई है।
पुलिस हुकाम ने शहरबीन को बताया कि उधमपुर की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बस नंबर JK02AS4127 ने वहां पहले खड़े एक मोटरसाइकिल को अपनी लपेट में लिया, जिसके नतीजे में दोनों मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि इससे पहले करीबी शाहरा के किनारे एक खराब टाटा मोबाइल गाड़ी नंबर JK024J6723 की मरम्मत में मसरूफ अफराद कुछ समझ पाते कि इस बेकाबू बस ने उन्हें भी अपनी जद में लेकर 2 अफराद को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिए। हादसे की इत्तला मिलते ही उधमपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई, ताहम तब तक बस की जद में आए तमाम 4 अफराद मौके पर ही लुकमाजल हो गए थे, जबकि एक राहगीर जख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने लुकमाजल बने अफराद की शिनाख्त संजीव कुमार वलद अशोक कुमार साकना रहमती उधमपुर, रईस अहमद वलद मोहम्मद शाबान गनई साकना बडगाम कश्मीर, कश्तवाड़ में 52 बटालियन CRPF में तैनात एहलकार मुकेश प्रजापति और रतन लाल वलद मोहन लाल साकना बटोत जिला रामबन के तौर की है, जबकि इस हादसे में बिमला देवी जौजे सुरजीत सिंह साकना चिनैनी शरीर जख्मी हो गई है, जिसे इलाज के लिए GMC अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया है। ये थे बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। इस दौरान साबिक वजीर वकार रसूल मानी ने इल्जाम लगाया है कि बानिहाल के मज़ाफाती इलाकों का राब्ता गुज़श्ता बर्फबारी के बाद से बहाल नहीं हो सका है, जबकि देहात में बिजली की सप्लाई भी असरअंदाज है। वकार रसूल मानी के मुताबिक लोगों को अब अपने बीमार कांधों पर या फिर चारपाइयों पर उठाकर बानिहाल लाना पड़ रहे हैं। जी जफर साहब, असल में जो बानिहाल का इलाका है, यहाँ मुसलसल बर्फबारी हो रही थी 22 तारीख से। बीच में 1-2 दिन बर्फबारी रुकी थी, लेकिन आज भी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है। लेकिन जो सड़कों पे बर्फ उठाने का काम है वो बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से है। बनिहाल मंगित रोड में भी 22 तारीख से कोई मशीन नहीं लगी, कोई बर्फ नहीं उठा। इसी तरह से नील रोड भी बंद पड़ा हुआ है, पोगल रोड बंद पड़ा हुआ है, गूल का बिमदास्ता, कलीमस्ता और छछवा जितने भी रोड हैं गूल में, वहां भी बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। गूल एरिया में वहां भी सारे रोड बंद पड़े हुए हैं। इसी तरह से जितने भी एडजॉइनिंग एरिया है, चाहे चकनाड़वाव है, चाहे फागू का एरिया है, वहां भी रोड बंद पड़ा। और साथ में बिजली भी पिछले 5-6 दिनों से बानिहाल टाउन के बगैर लोगों को मिली ही नहीं। और राशन की भी इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जनाब। लोग बहुत परेशान हैं, गैस की कमी है, राशन की कमी है, लोगों को अस्पताल में आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इमरजेंसी केसेस जो हैं उनको चारपाई पे लाया जा रहा है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है सरकार से कि किसी तरीके से हमारे जितने भी रूरल एरियाज के रोड है उनको खोला जाए, बिजली को रेस्टोर किया जाए, क्योंकि लोगों को इस वक्त बहुत ज्यादा हेल्थ में बड़ी प्रॉब्लम है। महू मंगत एरिया में पेशेंटों को जो गायनी प्रॉब्लम्स हैं उनको चारपाई पे लाया जा रहा है। इसी तरह से नेल पोगल भी वही हालात है, सुमड़ की भी वही हालात है, रामसू एरिया के भी वही हालात है, ठाची अमकूट चापनाड़ी की भी वही हालात है। लिहाजा मेरी दरखास्त है सरकार से कि कम से कम मशीनरीज को एक्टिव किया जाए, दूर दराज इलाकों में दवाई और डॉक्टरों को भेजा जाए, हॉस्पिटलों को एक्टिव किया जाए ताकि लोगों को परेशानी रहे। गुज़श्ता बर्फबारी के बाद से बानिहाल के कई इलाकों का राब्ता बंद, लोगों को मुश्किलात का सामना बात कर रहे थे साबिक वजीर वकार रसूल मानी। इधर कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने आज बर्फबारी के बीच त्राल के दूर इब्तदा इलाके जिनमें बंगड़ार, सतूरा, गुजर बस्ती, छोत्रगाम शामिल का दौरा किया और वहां लोगों से मुलाकात की। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि वहां तमाम लाजमी सहूलियात दस्तयाब कराई जाएं। इस दौरान महकमा मौसमियत के मुताबिक आज रात से मौसम दोबारा खुलने का इम्कान है और कल चंद अजला में हल्की बर्फबारी हो सकती है। डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शहरबीन को बताया कि 1 फरवरी को मगरबी हवाएं दोबारा वादी में दाखिल होने के नतीजे में चंद एक इलाकों में हल्की बर्फबारी का एक और दौर हो सकता है, जबकि 2 से 6 फरवरी तक मौसम में बदलाव देखा जाएगा। जैसे एक्सपेक्टेड था बारिशें हुई, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर, यहाँ वैली के अंदर बर्फबारी और साउथ कश्मीर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के मैदानी इलाकों के अंदर 3-4 इंच से लेकर 6 इंच तक की भी बर्फबारी हुई है और सेंट्रल कश्मीर में ऑलमोस्ट 1-2 इंच से लेकर लगभग 4-5 इंच तक की बर्फबारी और इसी तरह नॉर्थ कश्मीर के भी मैदानी इलाकों के अंदर 5 से लेकर 6 इंच तक की बर्फबारी हुई है। बाकी जो मिडल रीजन है, हाई रीजन, यहाँ पे 7-8 इंच से लेकर 1 फीट तक की भी बर्फबारी हुई है। तो इंटरमिटेंटली जैसे एक्सपेक्टेड है आज कंटिन्यू रहेगा और खासकर टुवर्ड्स लेट इवनिंग इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, बेहतरी होगी ग्रेजुअली और कल से
मौसम में बेहतरी आएगी। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कल भी थोड़ा हल्का फुल्का बर्फबारी रह सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए। बाकी 1-2 के बीच में एक माइनर WD के कारण वेट स्पेल की पॉसिबिलिटी है और कमिंग डेज में जो है लगभग 6 फरवरी तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस। लद्दाख खिते में बर्फबारी का क्या हाल रहा? सतह लद्दाख के अंदर भी बर्फबारी अभी कंटिन्यूसली चल रहा है, खासकर कल देर रात से, और अभी भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट 1-2 डिस्ट्रिक्ट में खासकर डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर 3-4 इंच की बर्फबारी हुई है। कुछ एक जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 से लेकर 8 इंच तक खासकर द्रास, सांकू और गांसर सब डिवीजन के अंदर। बाकी हल्की फुल्की बर्फबारी डिस्ट्रिक्ट लेक के कुछ एक मैदानी इलाकों में भी करंटली चल रहा है। तो आज लेट नाइट या कल अर्ली मॉर्निंग से जो है इंप्रूवमेंट के चांस हैं खिते लद्दाख के अंदर। डोडा बेल्ट में तरह की बर्फबारी हुई, आप उम्मीद कर रहे थे वहाँ ज्यादा होगी? बिल्कुल, खासकर यहाँ पौंछ, राजौरी और उसके साथ साथ जो चिनाब वैली के अंदर है यहाँ पे भी हल्की बर्फबारी करंटली चल रही है। 1-2 इंच एक्यूमुलेट हुआ है। पहाड़ी इलाकों में भी जो है ऑलमोस्ट 5 से लेकर 6 इंच, कुछ एक जो हायर रिस्ट है यहाँ पे 7 इंच तक की भी बर्फबारी जो एक्यूमुलेट हुई है। तो इंटरमीडिएटली खासकर चिनाब वैली के अंदर कल मॉर्निंग तक जो है ये एक्टिविटी जो है रह सकता है इंटरमीडिएटली कंटिन्यू। बर्फबारी से अभी कुछ एक खासकर मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा ग्रेजुअल राइज होगा और कमिंग डेज में जो है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के चांस हैं, खासकर डे टेम्परेचर स्पेशली मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर खासकर 29-30 के आसपास जो है थोड़ा सा फॉल के चांसेस हैं और उसके बाद जो है फिर से इम्प्रूव होने के इम्कान हैं, खासकर 31 जनवरी के बाद। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। सामिन कुपवाड़ा से मिली इतलात के मुताबिक हालिया बर्फबारी के बायस वादी लुलाब के बेशतर इलाके खासतौर देवर लुलाब, दर्दपोरा, टेंकीपोरा, वानी, डुरूसा, लालपोरा, गुंड, माछर और दीगर इलाकों के लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इन इलाकों में ताहाल अंदरूनी सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है, जिस वजह से रोजमर्रा के कामकाज मुतासर हो रहे हैं। सभी नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी ने आज चाडोरा के मीन पुल का जायजा लिया। उनके हमरा MLA चाडोरा अली मोहम्मद डार भी थे। इसके बाद मौसूम ने चार शरीफ का दौरा किया। वादी के मारूफ सहाफी सनम तसद्दुक के वालिद बशीर अहमद साहब गुज़श्ता दिनों इंतकाल कर गए। फन अदब और सहाबत से वाबस्ता कई शख्सियात ने बशीर अहमद साहब की वफात पर रंजो गम का इजहार करते हुए सनम तसद्दुक और अहल खाना से ताज़ियत की है। मरहूम के चारूम के सिलसिले में आज सुबह 11 बजे मकबरा अंजुम ग्राउंड बिमना में इज्तिमाई फातह खानी हुई, जबकि बाद में मरहूम के घर नजदीक न्यू RTO ऑफिस बिमना में दिन भर ताज़ियत की मजलिस मुनक्कद हुई। समिन जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हमीद के वालिद अब्दुल हमीद शाह दिल का दौरा पड़ने के बायस गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गए। मरहूम को उनके आबाई गांव इमाम साहब शोपियान में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम के इंतकाल पर मुख्तलिफ समाजी, मजहबी, सकाफती और सियासी अंजुमनों के अलावा अवामी नुमाइंदों ने रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया है। इस दौरान आज डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने इमाम साहब जैनपुरा शोपियान का दौरा किया और वहां डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के घर जाकर सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इस दौरान अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, DC ऑफिस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, MLA डूरू, GA मीर, MLA अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी, MLA अनंतनाग ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद खान, MLA पहलगाम अल्ताफ कुल्लू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इमरान शाह, BJP के लीडर सोफी यूसुफ और रफीक वानी, अपनी पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी हिलाल अहमद शाह, समाजी सियासी कारकुन सोफी अरफात ने भी जिला तरक्याती कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हमीद के वालिद के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और सोगवार खानदान से ताज़ियत की है। इधर उड़ी से मिली इतलात के मुताबिक आज बारामुल्ला ओडी सड़क NS ब्रिज के मकाम पर पस्सिया और पत्थर गिराने की वजह से कई घंटों तक बंद रही। इधर ओडी और बुनियाद इलाकों के दर्जनों देहात पिछले 5 दिन से बगैर बिजली हैं, जबकि यहां सड़कें भी बंद पड़ी हैं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ओडी में तरकांजन, मैदानन, बेरनेट, ददरन, सलासन, चौटाली, घगरेल, बाबगील, लच्छीपोरा, माया, रामपोरा, घरकोट, नामला घरकोट, हथलंगा, सोहरा, चरंडा, बटंगा, गोहलन समेत कई दीगर देहात में अभी भी बिजली बंद पड़ी है। जम्मू कश्मीर जनता दल यूनाइटेड के सदर GM शाहीन ने मरकजी वजीर रेल अश्विनी वैष्णव से मुतालबा किया है कि मौसमी हालात और जम्मू कश्मीर की जरूरियात को नजर में रखते हुए जम्मू से श्रीनगर और दिल्ली से श्रीनगर के लिए रास्त रेलें चलाई जाएं ताकि यहां के लोगों, तिजारत पेशा अफराद और मेवा सनत से वाबस्ता लोगों को राहत मिले और उन्हें अपना सामान मुल्क की मंडियों तक कम से कम वक्त और महफूज तरीके पर पहुंचाने में मदद मिले। मुश्ताक देवी ने खबर दी है कि गुज़श्ता शाम कश्तवाड़ पाड़ रोड पर नोनटू के मकाम पर दरियाई चिनाब अबूर करने के दौरान एक मां के हाथ से उसकी 3 साला बच्ची गिरकर दरिया में जा गिरी। तलाश के बावजूद भी
लाश बरामद नहीं हो सकी है। इधर छेचा में एक 19 साल नौजवान सईद यासिर हुसैन चौधरी भेड़ बकरियों के लिए पत्ते जमा करने के मकसद से जंगल गया था कि पहाड़ी से पांव फिसलकर एक गहरी खाई में जा गिरा और इस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हुई। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ा